السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی نواز. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹاک زون. ناظرین، اس ٹائم تک 6 ٹاپ سٹوریز ہیں میرے پاس جن کے اوپر بھی بات کریں گے. سب سے پہلے ہمارے پاس سٹوری ہوگی تحریک لبیک کارکن کی جیل میں شہادت اور اس پر ڈویژنل امیر شفیق قصوریہ صاحب کی مریم نواز کو وارننگ. اور اگلی بات کریں گے جس نے حضور کے غلاموں کے ساتھ ظلم کیا ان کی پکڑ کا وقت قریب ہے، یہ کہنا ہے مفتی محمد عمر فاروق قادری رضوی صاحب کا. اس کے اوپر بات کریں گے. اور اگلا موضوع ہے امریکہ میں ایک خاتون کی ہلاکت سے 10 دن سے احتجاج جاری ہے اور ہمارے پاکستان میں 600 سے زائد کارکن شہید ہو چکے، اس کے اوپر بات کریں گے. اور اگلی بات کریں گے سانحہ مرید کے سے تاحال لاپتہ ایک کارکن ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. اور اگلی بات کریں گے امیر تحریک لبیک سیالکوٹ کے بیٹے کی جیل سے رہائی، اس کے اوپر بات کریں گے. اور آخر میں بات کریں گے ٹی ایل پی کارکن جمیل بہرام کی بہن کا اپنے بھائی کی بازیابی کے لیے احتجاج. ان سب کے اوپر بات کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ یہ حق اور سچ کی آواز اسی طرح آپ تک پہنچتی رہے. چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈویژنل امیر شفیق قصوریہ صاحب نے جو کل کارکن شہید ہوا ہے جیل کے اندر، کوٹ لکھپت جیل میں، اس کے اوپر مریم نواز کو سخت الفاظ سے وارننگ دے دی ہے. ان کا کہنا تھا کہ لوگوں کے گھر اجاڑ کر مریم نواز اپنے بیٹے کی شادی میں مصروف ہے، اس سے بدتر غم تمہیں ملے گا. انہوں نے کہا ہے کہ مریم نواز اس سے بدتر غم تمہیں ملے گا، تیرا گھر بھی انشاءاللہ عز و جل اجڑے گا اور تو بھی اس بدتر غم کو دیکھے گی اور تیرا پورا خاندان اور تجھے چاہنے والے تڑپ تڑپ کر مریں گے. خدا تیری نسلوں کو برباد کرے، آمین ثم آمین. ناظرین، جب طاقت کے آگے بندہ نہیں کچھ کر سکتا تو پھر الفاظ ہی ہوتے ہیں، بد دعائیں ہی ہوتی ہیں جو کہ بندہ دل سے دیتا ہے، اور بد دعائیں ہی ایسی چیز ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو ہلا دیتی ہیں. یقیناً یہ طاقتور فرعون بنے ہوئے ہیں، ظالم بنے ہوئے ہیں، ان کے آگے اگر بندہ کچھ کر نہیں سکتا تو کم سے کم ان کو بد دعائیں ضرور دے سکتا ہے، اور اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. اور انشاءاللہ ان لوگوں کی بد دعائیں ضرور لگیں گی، ان غریبوں اور مسکینوں کی اور نہتے نوجوانوں کی جو کارکنوں میں بند ہیں یا جو شہید ہو چکے ہیں، ان کی بد دعائیں ضرور اثر لائیں گی. ناظرین، اگلی بات کرتے ہیں. ایک ہیں مفتی محمد عمر فاروق قادری صاحب. ان کا کہنا ہے کہ وہ وقت قریب ہے کہ جنہوں نے حضور کے غلاموں کے اوپر کھلا ظلم کیا، یعنی کہ وہ وقت قریب ہے جنہوں نے حضور کے غلاموں کے اوپر کھلا ظلم کیا، اب ان کی پکڑ کا وقت قریب ہوا جاتا ہے. اب ہیلے بہانے تراشے جائیں گے. ظالم کا ظلم ہمیشہ نہیں رہتا، ظالم تو آتا ہی ڈوبنے کے لیے ہے، یعنی کہ ظلم ہمیشہ نہیں رہتا. ہم نے دیکھا تاریخ بھری پڑی ہے ایسے ظالم حکمرانوں سے جو آئے، کوئی غرق ہو گئے، کوئی مارے گئے، کوئی قتل ہو گئے، ان کا نام و نشان کوئی عزت سے لینے والا نہیں ہے اس دنیا میں. اب عشاقان مصطفیٰ گریبان سے پکڑ کر تم سے پوچھیں گے کہ بتاؤ ہمارا قاتل کون ہے، ہمارا خون کس نے کیا، یہ قتل و غارت کا بازار کس نے گرم کیا، یہ گولی کس نے چلائی اور کس کے آرڈر پر چلائی، یہ آگ لگا کر پورے علاقے کو آگ میں دھسایا تھا، یہ کس نے دھسایا تھا. اب یہ سوال پوچھنے کا وقت قریب آیا جاتا ہے، یعنی کہ اب بہت ہو گیا، ان کا ظلم بہت ہو گیا، اب ان کے ظلم کا حساب نزدیک آنے والا ہے. یہ اپنے ظلم کے آخری، یعنی کہ جو
आखिरी कोना है उस तक पहुंच चुके हैं। अब इनका जुल्म खत्म होने वाला है और अल्लाह की पकड़ आने वाली है। अगर ये वाक़तन अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते होते, यानी कि ये वाक़तन अगर मुसलमान होते, ये जो मरीम नवाज और पंजाब की गवर्नमेंट है, अगर ये वाक़तन अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते होते तो ये कभी भी हुजूर के गुलामों के ऊपर जुल्म और ज्यादती ना करते। और अब वो दिन करीब है कि हीले बहाने तराशे जाएंगे और मुख्तलिफ तरजीहात बनाई जाएंगी कि जी ऐसे हुआ था, ये ऐसे हुआ था, हमने गोली का आर्डर नहीं दिया था, ये इदारों ने ये सब कुछ किया था, ये फलां के कहने पे किया था। अब ये हीले बहाने बनाएंगे कि वो दिन करीब है, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, कि जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों के ऊपर खुला जुल्म किया, अब उनकी पकड़ का वक्त करीब हुआ चाहता है। अब हीले बहाने तराशे जाएंगे। जालिम का जुल्म हमेशा नहीं रहता है और जुल्म तो आता ही डूबने के लिए है कि अब कौम, अब उशाका ने मुस्तफा इनको गिरबानों से पकड़ कर पूछेंगे कि हमारा कातिल कौन है, हमारा खून किसने किया है, ये कत्लो गारत का बाजार किसने करम किया था, ये गोली के ऑर्डर किसने चलाए थे, ये आग लगाकर पूरे इलाके को आग की लपेट में किसने दंसाया था। अब ये सवाल पूछने का वक्त करीब आया चाहता है। नाजरीन, अमेरिका में एक खातून की हिलाकत हुई है जिसको 10 दिन हो चुके हैं और पूरे अमेरिका में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। जबकि हमारे मुल्क में जो है, आप लोगों को पता है कि हमारे साथ क्या हुआ है। और मैं आप लोगों को याद करवाता चलूं कि एक खातून के कत्ल होने पर 10 दिन से एहतजाज है, जबकि हमारे यहाँ मुल्क में रोजाना पाकिस्तानियों को मारा जा रहा है। मजाल है कि कोई बंदा घर से बाहर निकले, कोई एहतजाज करे और कोई इनको आईना दिखाए। हाफिज साद की ये जबरी गुमशुदगी है और कारकुनान की चार दीवारी की पामाली, जनाजों की बेहुरमती, खवातीन पर जुल्म से जाया होने वाले हमल और मसमार होते घर और आवाज बुलंद करने वालों को खामोश कराना, ये सब एक ही कहानी के दो पहलू हैं। ये सब भी एक ही कहानी है जिसके ये पहलू हैं। और याद रखें, जुल्म हमेशा नहीं रहता, जुल्म जब भी बढ़ता है उसके बाद मिट जाता है। और तुम जितना जुल्म करोगे मुज़ाहमत इतनी ज़्यादा बढ़ेगी और वो वक्त आप लोगों को उस जगह पर लाकर ज़रूर खड़ा करेगा कि आपने गोली क्यों चलाई। और सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, हर चीज़ का तुम लोगों से हिसाब लिया जाएगा। नाज़रीन, अगली बात करते हैं। कोट लखपत जेल से शहीद होने वाले रोजी खान की लाश भी याद रखी जाएगी। यानी कि एक बूढ़े ज़ईफ शख्स को आपने जेल में कत्ल कर दिया। तारीख में लिखा जाएगा जब टीएलपी शहीदों की लाशें कोट लखपत जेल से निकाल रही थी, तब बड़े बड़े मुफ्ती आजम, उलमाए दीन, कारी साहिबान, बड़े बड़े आलिम सिर्फ 25,000 में फरोख्त हो रहे थे। ये याद रखा जाएगा। सदा बादशाही सिर्फ मेरे रब की है और किसी की भी नहीं है। नाज़रीन, अगली बात करते हैं। सानिया मुरीद के से ताहाल लापता एक कारकुन है, आसिम इशफाक साहब, जिसकी तस्वीर आप मेरे मोबाइल पर देख सकते हैं। सानिया मुरीद के से कबल लापता हैं। ये कोई आम गुमशुदगी नहीं है, एक खतरनाक और मशकूक मामला है। मुतलका इदारों की खामोशी नाकाबिले कबूल है। यानी कि कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये कारकुन किसके पास है। इसके अलावा और भी सैकड़ों कारकुनान हैं जो कि लापता है, ना पुलिस मान रही है, ना अदालतें मान रही है, कोई भी नहीं मान रहा कि वो किधर है। अगर किसी के पास मामूली सी भी इत्तला है आसिम इशफाक साहब के बारे में और वो छुपा रहा है तो वो भी इस संगीन जुर्म में बराबर का शरीक है। नाज़रीन, अगली बात करते हैं। अमीर तहरीक लबैक सियालकोट के बेटे की जेल से रिहाई हुई है। अमीर जिला सियालकोट गुलाम मुस्तफ़ा रिजवी साहब के छोटे साहबजादे
1 महीना 8 दिन जेल काटने के बाद अभी अल्हम्दुलिल्लाह जेल से रिहा हो चुके हैं। और आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये जज्बे बता रहे हैं कि बाबा जी जो मिशन हमें देकर गए थे, हम उस मिशन से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे और अपने मिशन पर कायम हैं। और दुश्मन यह समझता है कि हमने तहरीक लबैक वालों को मिशन से हटा दिया है, तो ये उनकी गलत फहमी है। हमें कोई भी इस रिजवी मिशन से नहीं हटा सकता। वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। छुपा के जिए न मुंह छुपा के जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला के जिए। 2 दिन अगर हम कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ थे जो शम्मा जला के नाज़रीन, एक तहरीक लबैक के कारकुन हैं जमील बहराम, उनकी बहन ने पोस्टर उठाकर एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और उनका कहना है कि जमील बहराम जिसको 3 अक्टूबर की रात को उठाया गया था, मेरे भाई को 3 अक्टूबर की रात को उठाया गया था, और वो सिर्फ एक्टिविस्ट है और ये कोई गुनाह नहीं है, इसका कोई कसूर नहीं है और ना ही कोई इसने क्राइम किया है और ना ही इसने कोई जुर्म किया है कि इसको उठाया जाए। 100 दिन पूरे हो चुके हैं इसको उठाए हुए। हम इसकी फौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं। अगर इसने कोई कसूर किया है तो इसको अदालतों में पेश किया जाए। इस बहन की वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। जमील बहराम को 3 अक्टूबर की रात को उठाया गया। वो एक्टिविस्ट है, रजा के लिए बोलता है, उसका कोई कसूर नहीं है, उसने कोई गुनाह नहीं किया, कोई क्राइम नहीं किया। 100 दिन से ज़्यादा हो गया उसको उठाए हुए। हम डिमांड करते हैं उसकी रिलीज़, या अगर उसने कुछ क्राइम किया है तो उसको कोर्ट में लाया जाए, ना कि अगवा किया जाए। जी नाजरीन, जुल्म का बाजार थमने का नाम नहीं ले रहा। दिन ब दिन कार्रवाइयाँ सख्त होती जा रही हैं। जो कारकुनान गायब हैं, जिनको जबरी गुमशुदा किया हुआ है, उनके घर वाले जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उठ रहे हैं और एहतजाज की तरफ आ रहे हैं। लेकिन ये एहतजाज कारगर तभी होगा जब लाखों लोग, जिस तरह अमेरिका में निकले हैं, पाकिस्तान में भी लाखों लोग रोडों पे निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, तब ही इस हुकूमत को जो है वो गिराया जा सकता है। उसके बगैर ये हुकूमत नहीं गिर सकती और ना ही ये जुल्म व जबर ख़त्म हो सकता है। हमने पहले ही कहा था कि तहरीक लबैक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर इत्तेहाद हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा एहतजाज जो है वो इसकी शक्ल अख्तियार कर लेगा और हुकूमत गिराने में टाइम नहीं लगेगा। अगर ये हुकूमत नहीं गिरती तो इनके जो जुल्म है दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे।